السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ہندوستان میں مہروالا کے نواح میں مختلف راجاؤں کے لشکر سے ہزیمت اٹھانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ واپس غزنی گیا اور بڑی ہی تیزی سے دو اہم کام شروع کر دیے تھے۔ پہلا یہ کہ غزنی کی بھٹیوں میں بڑی تیزی سے ہتھیار بننے لگے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس نے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ہندوستان میں اپنے جس کام کی تکمیل شہاب الدین غوری کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بڑی تیزی سے وہ تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ایک روز سلطان شہاب الدین غوری غزنی شہر سے باہر تربیت کے کھلے میدانوں میں لشکر میں شامل کیے جانے والے نئے لشکریوں کے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ غزنی شہر کا ایک تاجر سفید رنگ کے ایک انتہائی توانا اور بڑے قد کاٹھ کے گھوڑے کی باگ پکڑے اس میدان کے قریب نمودار ہوا۔ اس توانا اور دراز قد اور خوب لمبے گھوڑے کی پیٹھ پر جو زیر اور دوسرا ساز تھا وہ بھی بالکل نیا اور چمکتا ہوا تھا۔ گھوڑے کی باگ تھامے غزنی کا وہ تاجر اس جگہ آیا جہاں سلطان شہاب الدین غوری اپنے سالاروں میں سے قطب الدین ایبک، حسین خرمل ایبا، ناصر الدین قباچی، تاج الدین یلدوز، غیاث الدین خلجی، محمد علی غازی، لشکر کے قاضی شمس الدین بلخی اور کچھ دوسرے امراء کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تاجر اس گھوڑے کی باگ پکڑے جب سلطان شہاب الدین غوری کے قریب گیا تو سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سلطان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، اس لیے کہ وہ تاجر سلطان شہاب الدین غوری کا جاننے والا تھا۔ قریب جا کر بڑی ارادت مندی اور عقیدت میں اس تاجر نے شہاب الدین اور آس پاس کھڑے سب لوگوں کو بلند آواز میں سلام کہا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر سلطان شہاب الدین نے اس تاجر کو مخاطب کیا، یہ جو گھوڑا تم نے پکڑ رکھا ہے یہ کہاں سے لائے ہو؟ ایسا عمدہ گھوڑا میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا ہے۔ قد کاٹ، اپنی اونچائی، لمبائی اور جسمانی ساخت میں یہ عام گھوڑوں سے بالکل مختلف ہے، بھاگنے میں کیسا ہے؟ تاجر مسکرایا، کہنے لگا، سلطان محترم، میں کیا جانوں یہ بھاگنے میں کیسا ہے، اس لیے کہ آج تک نہ اس پر کوئی سوار ہوا نہ پتا چلا کہ بھاگنے میں کیسا ہے۔ بدک جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اگر تمہیں بیٹھنے نہیں دیتا، سیخ پا ہے، تو پھر اسے تم کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو؟ کیوں اسے پال رکھا ہے؟ جب اس کا تمہیں فائدہ ہی نہیں تو کیوں اس کی باگ تھامے پھرتے ہو؟ سلطان شہاب الدین غوری کے ان الفاظ پر وہ تاجر مسکرایا، کہنے لگا، سلطان محترم، یہ عربی گھوڑا ہے اور میں نے چند دن پہلے ایک بھاری رقم کی عوض ایک ایرانی تاجر کے ہاتھوں خریدا ہے۔ میں خود بھی گھوڑوں کا تاجر ہوں۔ اس جیسا اچھا اور توانا گھوڑا میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ میرے بیٹوں میں سے کچھ نے اور کچھ میرے جاننے والوں نے اس پر سواری کرنا چاہی، لیکن یہ اپنی پیٹھ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا۔ سلطان محترم، یہ گھوڑا جہاں بذات خود اچھوت ہے، وہاں اس گھوڑے کا جو ساز ہے وہ بھی اچھوت ہے۔ اس پر بھی ابھی تک کوئی نہ بیٹھا ہے نہ سوار ہوا ہے۔ سلطان محترم، میں یہ گھوڑا نہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں نہ یہ میرے کام کا ہے۔ تاجر ہوں، گھوڑوں کا لین دین کرتا ہوں، ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ فروخت کر دیتا ہوں، منافع معقول مل جاتا ہے۔ سلطان محترم، اگر آپ انکار نہ کریں تو یہ گھوڑا میں آپ کے نظر کرنے آیا ہوں، میری طرف سے اسے تحفتاً قبول کریں۔ سلطان شہاب الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، تاجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے وہ رقم بتاؤ جو ادا کر کے تم نے گھوڑا خریدا۔
मैं इस घोड़े को पसंद कर चुका हूँ। जो रकम तुम्हारी इस पर खर्च हुई है वो भी मुझसे लो और जो मुनाफा लेना चाहते हो वो भी कहो। ताजिर के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। सुल्तान को मुखातब करके कहने लगा, सुल्तान मुहतरम, आपसे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। मुनाफा तो एक तरफ रहा, मुझ पर घोड़े की जो असल रकम है वो भी हराम है। मैं इसे आपकी नजर करता हूँ, मेरी दिल शिकनी ना कीजिएगा। मैं इस घोड़े को खास तौर पर आपको तोहफे में पेश करने के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ इस घोड़े पर पहली सवारी आप ही करें। अगर आप इस पर बैठकर जब आप अपने लश्करियों की रहनुमाई करेंगे तो मेरे लिए एक सादत और एजाज होगा कि सुल्तान ने मेरी तरफ से तोहफे में दिए जाने वाले घोड़े पर बैठकर लश्करियों की कमांडरी की है। वो ताजिर जब खामोश हुआ तब आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान उस घोड़े की तरफ बढ़ा। घोड़े की बाग पकड़कर जब सुल्तान ने उसकी गर्दन थपथपाई और उसके सर पर हाथ फेरा और जब सुल्तान ने अपना हाथ जेन पर रखा तो घोड़े ने अपने कान बिल्कुल सीधे कर लिए थे। बड़ी तेजी से कुंतियां बदलने लगा था। मुंह उसने बिल्कुल आगे सीधा कर लिया था और उसने अपने जिस्म की साख्त बिल्कुल यूं बना ली थी जैसे अगर थोड़ी देर तक मजीद जेल पर हाथ रखा गया तो वो दौलतियां छाड़ना शुरू कर देगा। घोड़े की यह हालत देखते हुए जहां सुल्तान मुस्कुरा रहा था वहां इर्द गिर्द खड़े दूसरे लोग भी महजूज हो रहे थे। ताजिर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी थोड़ी देर तक उस घोड़े की गर्दन थपथपाता रहा। ताजिर को मुखातब करके कहने लगा, तुम मुझे ये घोड़ा तोहफतन दे चुके हो। अब मैं इस घोड़े का मालिक हूँ। अगर मैं इस घोड़े को अपनी तरफ से किसी अजीज को पेश करना चाहूँ तो तुम्हें इतराज तो नहीं होगा। जवाब में ताजिर मुस्कुराया, कहने लगा, सुल्तान मुहतरम, किस किस्म की बातें करते हैं। जब ये घोड़ा ही आपका है तो मेरी तरफ से जिसको चाहे आप दे दें। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुछ देर सोचा, फिर ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐबा मेरे करीब आओ। ऐबा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सुल्तान के करीब गया। सुल्तान ने उस घोड़े की बाग ऐबा की तरफ बढ़ाई और उसे मुखातब करके कहने लगा, ऐबा, ये घोड़ा तुम्हारा है। आज से घोड़ा तुम्हारी सवारी में रहेगा और तुम्हारी मिल्कियत है। देखो, इस मौके पर मैं तुम्हें एक नसीहत भी करूंगा। चंद साल बाद तुम बचपने की हुदूद से निकलकर जवानी की सहराओं में दाखिल हो जाओगे। उस वक्त तक इस घोड़े को सुधारते रहो। मैं जानता हूं तुम बेहतरीन सवार हो, सवार नहीं बल्कि शह सवार हो। बड़े बड़े अड़ियल, बड़े बड़े शेख का घोड़ों पर सवारी करने का हुनर जानते हो। ये घोड़ा संभाल लो, इस पर सवारी करते रहो और साथ ही साथ इसे जंगी तरबियत देते हुए इसे सुधारते भी रहो। ऐबा मुस्कुराया, सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। हाथ बढ़ाकर उसने घोड़े की बाग पकड़ ली। फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मुहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पर सवारी कर लूं। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी मुस्कुराया और कहने लगा, ताजिर तो कहता है ये घोड़ा पीठ पर बैठने नहीं देता, और अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब ये तुम्हारा घोड़ा है। ऐबा मुस्कुराया। घोड़े की दोनों बागें उसके सिर के दाएं बाएं ले गया। गर्दन के करीब जहां घोड़े की याल काफी लंबी और गहरी थी और इधर उधर फैले हुए थे, वहां उसने दोनों बागों को अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। फिर घोड़े को उस जगह जरा हटा लिया जहां सुल्तान अपने सालारों और उमरा के साथ खड़ा था। घोड़े का रुख तरबियत के मैदानों के मुखालिफ सिमत किया। उसके बाद दाएं हाथ से घोड़े की पीठ के करीब उसने ठोकर लगाई, जिस पर घोड़ा भाग खड़ा हुआ। साथ ही ऐबा भी भागने लगा। भागते भागते ऐबा ने चीते सी जुस्त लगाई और दूसरे ही लम्हे वो घोड़े की पीठ पर बैठा था। उसके बाद ऐबा घोड़े को एड़ पर एड़ लगाए दौड़ाना शुरू हो गया था। उसकी तरबियत गाह के कई चक्कर घोड़े को खूब भगाते हुए लगाए। जिस वक्त वो घोड़े को सर पर दौड़ा रहा था, सुल्तान शहाबुद्दीन ने ताजिर की तरफ देख कर कहना शुरू किया, तुम कहते थे कि इस घोड़े पर कोई बैठ नहीं सकता, जरा मेरे इस नौ उम्र मुजाहिद को भी देखो। घोड़े पर इस तरह सवार हुआ है जैसे चीता अपने शिकार पर झपटता है। फिर देखो, घोड़े को पूरी रफ्तार से भगा रहा है। थोड़ी देर तक घोड़े को थका मारेगा। थोड़ी देर तक घोड़े को भगाने के बाद
सुल्तान शहाबुद्दीन के करीब आकर ऐबा ने घोड़े को रोक लिया, साथ ही घोड़े के मुंह पर हाथ फेरता रहा, फिर उसकी गर्दन थपथपाई। इस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन आगे बढ़ा, ऐबा की पीठ थपथपाई, उसे मुखातब करके कहने लगा, इस घोड़े पर सवारी करके ऐबा आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब घोड़े को यहाँ बांधो, मैदान में उतरो और नए लश्करियों की तरबियत का काम सरंजाम देना शुरू करो। मैं अब वापिस शहर की तरफ जाऊंगा। इसके साथ ही सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अपने उमरा के साथ शहर की तरफ चला गया था, जबकि उसके सालार नए लश्करियों की तरबियत का काम सरंजाम दे रहे थे। मेहरवाला का राजा भीमदेव और उसकी रानी राज कंवल अपनी ख्वाबगाह में बैठे हुए थे कि ख्वाबगाह में उनका बेटा रामदेव भागता हुआ दाखिल हुआ। उसे इस तरह आते देखकर दोनों मियाँ बीवी उठ खड़े हुए। भीमदेव अपने बेटे रामदेव को मुखातब करके कुछ कहना ही चाहता था कि रामदेव करीब आया और अपने माता पिता दोनों को मुखातब करके कहने लगा, ये आप कुमार देवी को समझाइए, इसकी मत मारी गई है, हर रोज ये कोई ना कोई उल्टा काम करना शुरू कर देती है। रामदेव को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए रानी राज कंवल बोल उठी थी, बेटे तुझे इससे क्या शिकायत है? अब इसने क्या हरकत की है जो तुझे नागवार गुजरी है? रामदेव ने फिर पहले से भी ज्यादा गुस्सा और खफखफगी में कहना शुरू किया, माता, उसने राज मंदिर के पंडित उदयमल को बुलाया है, उसके साथ वो राज मंदिर जाएगी और वहां देवी देवताओं के सामने खड़ी होकर सौगंध खाएगी कि उस वक्त तक शादी नहीं करेगी जब तक ऐबा को कत्ल नहीं करेगी। राज कंवल के चेहरे पर बेजारी के आसार नमूदार हुई और दुख भरे अंदाज में कहने लगी, इस कुमार देवी का दिमाग खराब हो गया है, कोई ना कोई नया काम शुरू कर देती है। उसने खुद अपनी हरकतों से ऐबा को जाय किया, वरना वो बहुत अच्छा लड़का था। अगर ये उसे प्यार देती, उससे हमदर्दी का इजहार करती तो कभी यहां से ना भागता, उसके साथ रहता, उसका बेहतरीन जीवन साथी साबित होता और साथ ही हमारे लश्कर में भी एक सूदमंद इजाफा होता। यहां तक कहने के बाद राज कंवल रुकी, फिर अपने बेटे को मुखातब करके कहने लगी, तुम दोनों बाप बेटा यहीं रुको, मैं जरा उसे समझाती हूँ। भीमदेव ने अपनी रानी राज कंवल का हाथ पकड़कर रोक लिया, फिर कहने लगा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ वो करना चाहती है उसे कर लेने दो। देखो, ऐबा को कत्ल तो वो उस वक्त करेगी जब वो उसके हाथ आएगा। वो शहाबुद्दीन गोरी का एक लश्करी है। शहाबुद्दीन गोरी यहाँ से हजीमत उठाकर गजनी जा चुका है, तो क्या ये उसे गजनी जाकर कत्ल करेगी? इस मौके पर उसे किसी काम से रोकने का फायदा ही नहीं, ख्वामखा घर के माहौल को खराब करने की क्या जरूरत है? रामदेव, मेरे बेटे, तुम भी सुनो, उसे पंडित उदयमल के साथ जाने दो, सौगंध खाती है तो खाने दो, उससे क्या होता है? क्या सौगंध खाने के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि ऐबा को कत्ल कर देगी? और फिर ये भी सोचो कि ऐबा उसके मुकाबले में कोई अनाड़ी तो नहीं है, जब चाहेगी ये उस पर वारिद होकर उसका खात्मा कर देगी। तेज जनी और तीर अंदाजी के हुनर में वो इससे कहीं आगे है, लिहाजा इसके साथ नहीं आएगा, लिहाजा इसके हाथ नहीं आएगा। तुम्हें इस कामों में मुजाहमत करने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ करना चाहती है उसे करने दो। फिर भीमदेव ने रामदेव का हाथ पकड़कर अपने करीब ही बैठा लिया और कहने लगा, हम तीनों यहाँ बैठते हैं बेटे, वो जो कुछ करना चाहती है उसे कर लेने दो। सौगंध खाने के बाद वो फौरन इस काबिल तो नहीं हो जाएगी कि यहाँ से उड़कर गजनी पहुंच जाएगी और ऐबा का काम तमाम कर देगी। सौगंध खाने से क्या होता है? रामदेव अपने पिता के समझाने पर मुतमईन हो गया था। अपने बाप के पास वो बैठ गया, जबकि भीमदेव और उसकी रानी रामदेव के आने से पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे उसी पर गुफ्तगू करने लगे थे। इस गुफ्तगू में अब रामदेव भी शरीक हो गया था। दूसरी तरफ राजकुमारी कुमार देवी बड़ी बेचैनी से राजमहल के सामने खुले इहाते में खड़ी थी। यहाँ तक कि राजमहल के सदर दरवाजे से राज मंदिर का बड़ा पंडित उदयमल दाखिल हुआ। उसे देखते ही कुमार देवी खुश हो गई थी। उदयमल तेज तेज कदम चलता हुआ कुमार देवी के सामने आया। जमीन की तरफ झुकते हुए उसने कुमार देवी को ताज़ीम दी, फिर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहने लगा, राजकुमारी, आपने मुझे तलब किया है? कुमार देवी के खूबसूरत लबों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। पहले उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर अपनी शीरीं आवाज में कहने लगी,
हाँ, मैंने ही आपको बुलाया है। खैरियत तो है? पंडित ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए पूछ लिया था। सब खैरियत है। मैं आपके साथ जरा राज मंदिर जाना चाहती हूँ। आप जानते हैं, उस मुसलमान लड़के को मैं अब अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन समझती हूँ। मैं आपके साथ जरा मंदिर जाकर देवी देवताओं के सामने ये सौगंध खाना चाहती हूँ कि जब तक मैं उस मुसलमान लड़के ऐबा को कत्ल नहीं करूंगी, उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी। कुमार देवी की अल्फाज सुनकर पंडित उदयमल खुश हो गया था। वाह वाह, क्या इरादा है, क्या आज़म है। इससे बेहतर कोई और काम हो ही नहीं सकता। अगर आप ये करना चाहती हैं तो फिर वक्त जाय करने की क्या जरूरत है। चलिए मेरे साथ। कुमार देवी मुस्कुराते हुए चुपचाप पंडित उदयमल के साथ हो ली थी। वो राज मंदिर में दाखिल हुई और वहां उसने बड़ी आजिजी और इंकिसारी से अपनी देवी देवताओं के सामने खड़े होकर ये कसम खा ली थी कि जब तक वो ऐबा को कत्ल नहीं करेगी, उस वक्त तक शादी नहीं करेगी। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी लगातार 1 साल तक गजनी में अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ रहा। अपने लश्कर में इजाफा करता रहा। गजनी की भट्टियों में असलह तैयार होता रहा। यहाँ तक कि 1 साल बाद यानी हिजरी 575 में वो गजनी से निकला। अब उसने इरादा किया था कि हिंदुस्तान के राजाओं पर हमलावर होने के लिए रास्ते में जिस कदर शहर पड़ते हैं सब पर कब्जा कर ले, ताकि जब वो हिंदुस्तान के राजाओं पर हमलावर होकर यहाँ अपनी हुकूमत कायम करने का इरादा रखे तो रास्ते उसके लिए बिल्कुल पुरअमन और सरकशी और बगावत से साफ हो। गजनी से निकलने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने पेशावर के नवाह में उन इलाकों पर हमलावर होने का इरादा किया जो अभी तक उसकी अलमदारी में न थे। तारीख में ये इलाके इस वक्त बिकराम, पुरशोर और फरसूर के नाम से पुकारे जाते थे। इन इलाकों पर सुल्तान शहाबुद्दीन ने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ यहाँ जो कुवत भी उसके सामने आई उसने उसे कुरेद कर रख दिया और इन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। इस तरह गोया उसने दरिया सिंध तक के सारे इलाके को अपनी अलमदारी में शामिल करते हुए और अपने मातहत लाते हुए अपने लिए महफूज बना दिया था। इस कार्रवाई की तकमील के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ चंद दिन तक पेशावर में क़याम किया। तारीख के औराक में पेशावर शुरू ही से बड़ा अहम शहर है। ये शहर दरियाए बाडरह के बाएं किनारे के करीब जमरूद से 11 मील और दर्रा खैबर के दाखिले पर वाक़ है। इब्तिदा में एक हिफाजती फसील इस शहर के इर्द गिर्द थी और इस शहर के 16 दरवाजे थे। तारीख के औराक में पेशावर का जिक्र सबसे पहले रियासत कंधार के एक हिस्से की सूरत में मिलता है जो एक बुद्ध सल्तनत थी। सिकंदर आजम के हमले के बाद पेशावर के बारे में मालूमात मिलती है। 326 कब्ल मसीह में सिकंदर के लश्कर ने जिन 2 अलहदा रास्तों से दरिया सिंध की तरफ कूच किया था उनमें से एक रास्ता पेशावर और दुर्राए खैबर के जरिए था। अगरचे यूनानियों के इससे पहले हमले ने पेशावर पर कुछ खास असरात न छोड़े थे, ताहम सिकंदर की वापसी के बाद बुधमत पेशावर और काबुल तक पहुंच गए। 7वीं सदी के आखिरी में पुश्तून यहाँ आए जिन्होंने आते ही सिंध तक का मैदानी इलाका अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि इससे पहले ये इलाका लाहौर के हाकिमों के तहत हुआ करता था। इसके बाद दरिया सिंध के मगरिब और दरिया काबुल के जुनूब के दरमियानी पहाड़ी इलाके पर ये लोग काबिज हो गए। पुश्तून चूंकि मेहमान नवाज होने के साथ साथ बला के जफाकश, जुर्रतमंद, गुयूर, दिलेर और सरफरोश और जानिसार किस्म के लोग थे, लिहाजा अपनी इन्हीं आला औसाफ की वजह से इन इलाकों पर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। 10वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान सुबुक्तगीन ने लाहौर के राजा जयपाल को शिकस्त दी तो पेशावर गजनवियों के कब्जे में चला गया और 11वीं सदी के पहले चौथाई हिस्से तक महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर अपने हमलों के दौरान पेशावर ही को अपने लश्कर का मरकज बनाए रखा। इसके बाद यह शहर तकरीबन 100 साल तक गजनवियों के तहत रहा। गजनवियों के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ हुक्मरान हुकूमत करते रहे, यहाँ तक कि गौरी आए। इसके बाद 1505 ईस्वी में दुर्राए खैबर के वास्ते बाबर हमलावर हुआ। पेशावर के अलावा उसने बाजोड़ और सिवात को भी अपना मुती बना लिया था। औरंगजेब और उसके जानशीन 1738 ईस्वी तक यहाँ हुकूमत करते रहे। इसके बाद इस शहर पर ईरान के बादशाह नादिर शाह का कब्जा हो गया। उसकी वफात के बाद जब आलम इस्लाम के अजीम फर्जंद और रिजले अजीम अहमद शाह दरानी ने कंधार में अपनी हुकूमत कायम की
तो पेशावर पर भी उसका कब्जा हुआ। 1815 ईस्वी में यह सारा इलाका सिखों ने फतह कर लिया और 1818 ईस्वी में सिखों के हुक्मरान रंजीत सिंह ने यहाँ अपने एक साथी हरि सिंह को हाकिम मुकर्रर किया था। 1839 में यह इलाका पूरी तरह अंग्रेजों की ममलिकत में शामिल कर दिया गया और पेशावर और गिरदो नवाह के सारे इलाके को पंजाब की हुकूमत का इंतजामी जिला बना दिया गया। 1901 में शुमाल मगरिबी सरहदी सूबे के नाम से एक अलहदा सूबा बना दिया गया और पेशावर को उस सूबे का सदर मकाम करार दिया गया। बहरहाल सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पेशावर के गिरदो नवाह के इलाके को अपनी तसल्लुत में करने के बाद पेशकदमी की और अब उसने लाहौर का रुख किया था। लाहौर पर उस वक्त आखिरी गजनवी बादशाह खुसरो मलिक हुकूमत करता था। जहां तक लाहौर का ताल्लुक है तो कहते हैं कि हिंदुओं के ओता रामचंद जी और उनकी बीवी सीता के बेटे लियालू ने अपनी मां की याद में दरियाए रावी के किनारे ये शहर आबाद किया था। ये शहर लाहौर, लोहार और लहूर के नामों से भी याद किया जाता है और आखिर में इसका तलफ़्फ़ुज़ लाहौर बनकर रह गया। इस शहर के गिर्दागिर्द बाद के जमाने में एक फसील और 13 दरवाजे बनाए गए। इन दरवाजों के निशानात अब भी मिलते हैं और जहां ये दरवाजे बनाए गए थे उनके करीबी आबादियां उन्हीं के नाम से मंसूब है, जैसे लोहारी दरवाजा, शिरानवाला दरवाजा वगैरह। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलावर होकर इस शहर पर कब्जा कर लिया और हिजरी 912 में लाहौर से शुमाली हिंद के बहुत से इलाकों को फतह किया और इस फतह की याद में लाहौर में उसने एक मस्जिद तामीर कराई। जब सुल्तान महमूद गजनवी वापस गजनी जाने लगा तो अपनी तरफ से उसने अपने मंजूर नजर गुलाम अयाज को लाहौर का हाकिम मुकर्रर किया। आज भी महमूद गजनवी के गुलाम अयाज की कब्र पुराने शहर में चौक रंग महल में मौजूद है। बर्रे सगीर के मशहूर शेख और सूफी बुजुर्ग अली हजवेरी भी यहाँ काफी अर्जा रुश्द हिदायत की रोशनी फैलाते रहे। उनका मजार भी यही है। 1186 ईस्वी तक 1190 ईस्वी के अरसे में गौरी खानदान और उसके गुलाम यहाँ हुक्मरानी करते रहे। उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक का भी शुमार होता है, जिसका मजार लाहौर के मशहूर बाजार अनारकली के करीब वाक़ है। उसके बाद खिलजी खानदान ने यहाँ हुकूमत की तो लगभग 250 साल तक लाहौर पर हुकूमत करते रहे। इस अरसे में मंगोलों ने कई बार हमलावर होकर इस शहर को तख्त ताराज किया। कहते हैं कि जब सुल्तान मुबारक शाह लाहौर आया तो यहाँ सिर्फ खंडरात बाकी थे। उसने शहर को दोबारा तामीर करवाया। उसके बाद लाहौर लोदियों के जमाने में भी काफी मशहूर और मारूफ रहा। आखिर दुर्राए खैबर और पेशावर से गुजरने के बाद मुगल बाबर की सरकर्दगी में लाहौर पर काबिज हुए। शहंशाह बाबर ने अपने बेटे कामरान को यहाँ का वली मुकर्रर किया। दरियाए रावी के किनारे कामरान के हुक्म से एक 12 दरी तामीर की गई। इस 12 दरी और बाग के आसार आज भी मिलते हैं। बाबर के बेटे हुमायूं के जमाने में लाहौर शोरशों की आमागाह जा बना रहा। यहाँ तक कि शहंशाह अकबर ने अपने जमाने में लाहौर की असर-ए-नौ तामीर करवाई और लाहौर की आबादी के गिर्द फसील और मुख्तलिफ दरवाजे उसी जमाने में तामीर किए गए। लाहौर का किला तो बहुत पुराना और पहले से मौजूद था, लेकिन अकबर के जमाने में उसे दोबारा पुख्ता तामीर किया गया। अकबर ही के जमाने में मशहूर इफरात उर्फी और फसीह तक ने यहाँ क़याम किया। शहंशाह जहांगीर के अहद में यहाँ एक आलीशान मस्जिद तामीर की गई, जिसका नाम मस्जिद वजीर खान रखा गया, जो अब भी मौजूद है। इसके अलावा शाहिदरा के करीब जहांगीर का मकबरा भी इसी दौर की यादगार है। औरंगजेब को लाहौर आने का मौका तो बहुत कम मिला, लेकिन उसकी कोशिशों से शाहजहां के अहद में तामीर करदा बाज यादगारों को महफूज करने का काम हुआ। उसी अहद में दुनिया के मशहूर और मारूफ शाही मस्जिद भी तामीर की गई, जो फन तामीर का बेहतरीन नमूना ख्याल की जाती है। मुगलों के जवाल के बाद पेशावर की तरह लाहौर पर भी सिखों की हुकूमत कायम हुई और सिखों के बाद यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई थी।